Hi guys, welcome back to the Political Science lecture series on near peer. And in this lecture, we're going to cover local government system. And the first part of this three-part lecture series on local government is going to cover its significance and the framework of local government system. So we're going to discuss this topic, and इस पे ये past paper में सवाल भी आ चुका है. What is the significance of local government system in a country? Discuss the reasons of repeated failures of the efforts in Pakistan to establish a stable local government. तो पहला part जो है इस सवाल का, उसमें एक general discussion है local government system की significance के ऊपर, जिसमें हम basically उसके फायदे जो हैं local government के वो discuss करेंगे. और second part जो है वो पाकिस्तान specific है. तो हम काफ़ी detail में discussion करेंगे local government system के अंदर, जिसमें ये दोनों aspects भी cover होंगे और इसके अलावा जो स्ट्रक्चर है लोकल गवर्नमेंट का और हिस्टोरिकली वो स्ट्रक्चर कैसे इवॉल्व हुआ है हम वो भी डिस्कस करेंगे. सो इन दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर द प्रिंसिपल्स दैट गवर्न लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, व्हिच हैज टू प्रिंसिपल्स, द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ इलेक्टोरल लेजिटिमेसी. द सेकंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन, जो है उसके 5 levels होते हैं. So the lowest is deconcentration, then is delegation, then divestment, then diffusion and then devolution. And then rationale and advantages. So basically ये जो principles हैं और ये जो rationale and advantages हैं, these essentially cover the significance aspect, कि क्या significance है, उसका क्या फ़ायदे हैं local government system के. और ये basically मज़ीद detail में उसको आप explore कर रहे हो कि किस किस level पे किस हद तक डिसेंट्रलाइजेशन एंड किस हद तक ऑटोनॉमी दी जाती है लोकल गवर्नमेंट को, और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के ऊपर. So local government is a management model of democratic governance. The concept of local governance has emerged due to the expansion of state functions and duties, and in order to consolidate citizens' rights to and participation in the management of their affairs. This means that citizens conduct their affairs by themselves within a particular local authority. तो लोगों को democratic grassroots level पे जो democracy है उस पे उसका ये एक बहुत important model है grassroots democratic governance का. A local government is a form of public administration which, in a majority of contexts, exists as the lowest tier of administration within a given state. तो ये सबसे lowest tier होता है administration का, governance का, and the term is used in contrast with offices at state level, national level पे, which are referred to as the central government, national government or federal government, and provincial or state government. In federal states, local governments generally comprises the third tier or sometimes the fourth tier of government. क्योंकि federal states में सबसे पहले federal government आएगी, फिर independent autonomous constituent units की, यानी जैसे हमारी provincial governments हैं और इंडिया में state governments हैं, US के अंदर state governments हैं, वो आती हैं, और फिर तीसरे tier पे आपकी local government आती है. In United States, local government usually occupies the second or third tier of government, often with greater powers than higher levels of administrative divisions. तो वहाँ पर local governments को बहुत ज़्यादा powers हैं. जैसे न्यूयॉर्क का mayor is considered to be one of the most important political offices in the United States. Michael Bloomberg, who was the presidential candidate in the 2020 electoral cycle, was also used to be the mayor of New York City. So that's how important it is. इसी तरह में UK में भी नजर आता है. लंदन में mayor Sadiq Khan has earned worldwide fame, obviously because of his background of being from Pakistani descent, but also because of the fact that mayor of London is a very important position. Because of the fact that these offices in a lot of developed countries have a lot of authority and autonomy. Now, what are the principles that govern local government? जो foundation है, किन principle, किन उसूलों के ऊपर local government का निज़ाम खड़ा है, उसमें जो पहला उसूल है उसे कहते हैं principle of subsidiarity. Subsidiarity का concept ये है कि जहाँ पर मसला शुरू होता है या जिस जगह पर मसला exist करता है, उसकी resolution भी उसी जगह पर होनी चाहिए. सो जिस टीयर पे कोई इशू एग्जिस्ट करता है उस टीयर पे उसका हल होना चाहिए. सो चूंकि जो लोकल लेवल के या म्यूनिसिपल लेवल के मसाइल हैं, उनका ओरिजिन या उसके जो इफेक्टिव्स होते हैं वो लोकल लेवल पे होते हैं, तो उसकी रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म भी उसी लोकल टीयर पे होना चाहिए. ये प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी के तहत लोकल गवर्नमेंट्स इस फ्रेमवर्क के तहत ऑपरेट करती हैं. इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन दैट होल्ड्स that social and political issues should be dealt with at the most immediate or local level that is consistent with their resolution.
ठीक है, hence the problem needs to be resolved where it originally originates from. Then the second principle is the principle of electoral legitimacy, के मसाइल का हल करने के लिए लोगों को इलेक्शंस लड़ने चाहिए ताकि वो लोग नुमाइंदगी कर सकें जो लोगों की पॉपुलर सपोर्ट से आते हैं. सो लोगों के मसाइल का हल जो है वो लोगों के नुमाइंदे ही कर सकते हैं, जो जनरली एक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का प्रिंसिपल है. लोकल गवर्नेंस रिक्वायर्स मेंबर्स ऑफ लोकल काउंसिल्स टू बी इलेक्टेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ दैट कम्युनिटी who themselves are in the best place to know their needs, in contrast to other forms of public administration characterized by subordination to central authority. कि जैसे एक bureaucratic governance है, where bureaucrats are not elected at local level and they're answerable to higher authority like provincial governments or their provincial bureaucracy or federal government or federal bureaucracy. तो लोकल लेवल पे लोकल काउंसिल्स जो हैं वो अपनी डायरेक्ट कंस्टिट्यूएंसी को पॉपुलेशन को आंसरेबल होते हैं. देन वी हैव tiers of administrative decentralization, या आप इसे कह सकते हैं grades of administrative decentralization. So इससे मुराद ये है कि जो हम सबसे पहला इसमें कवर करेंगे डीकॉन्सेंट्रेशन, उसमें सबसे कम ऑटोनॉमी दी जाती है लोकल लेवल पे. सो ये ग्रेड्स हैं कि किस हद तक ऑटोनॉमी आप देते हो लोकल गवर्नमेंट्स को. सो डीकॉन्सेंट्रेशन व्हिच इज कंसिडर्ड टू बी द वीकेस्ट फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, यानी पावर की डिसेंट्रलाइजेशन में सबसे कम फॉर्म है, ये लोएस्ट फॉर्म है, एंड इज यूज्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन यूनिटरी स्टेट्स फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज यूनिटरी स्टेट्स जनरली कंसंट्रेट करती हैं पावर एट द सेंटर और नीचे पावर कम देती हैं. तो ऐसी यूनिटरी रियासतों के अंदर अमूमी तौर पर जब लोकल गवर्नमेंट्स बनती हैं तो वहाँ पे डीकॉन्सेंट्रेशन का मॉडल यूज किया जाता है, जिसमें सबसे कम ऑटोनॉमी, कंसिडरेबली लो ऑटोनॉमी दी जाती है और पावर्स दी जाती हैं लोकल काउंसिल्स को. It redistributes decision-making authority and financial and management responsibilities among different levels of central government. It mainly, क्योंकि unitary system की यहाँ पर basically बात हो रही है कि unitary systems के अंदर ज़्यादातर central government के पास होती है. It can merely shift responsibilities from central government officials in the capital city to those working in provinces and local districts. The central government only transfers some of its responsibilities to lowest units within its jurisdiction. The deconcentration के मॉडल के अंदर जो ज्यादातर यूनिटरी स्टेट्स में प्रैक्टिस होता है, बस सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी चंद कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑटोनॉमी जो है वो लोकल यूनिट्स को देती हैं अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर. द सेकेंड, यानी कि डीकॉन्सेंट्रेशन से थोड़ा सा ज्यादा ऑटोनॉमी वाला मॉडल है डेलीगेशन का. इट इज अ मोर एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ दैट डिसेंट्रलाइजेशन. Through delegation, central and subsequently provincial governments transfer responsibility for decision making and administration of public functions to semi-autonomous local governments, not wholly controlled by the provincial government in federation and central government in unitary states, but ultimately accountable to it. इस मॉडल के अंदर थोड़ी सी ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर लोकल काउंसिल्स को दी जाती है, लेकिन अल्टीमेटली वो कंप्लीटली ऑटोनोमस नहीं होती, सेमी ऑटोनोमस होती हैं, बिकॉज दे आर स्टिल accountable to the provincial governments in federations and central governments in unitary states. तो कंट्रोल उनको नहीं कर रहे होते लेकिन अकाउंटेबल होते हैं उसके अंदर. आप पाकिस्तान कैन बी कंसिडर्ड मोर और लेस, इसके अंदर आप लिख भी सकते हैं, अ मॉडल जो कि डेलीगेशन के प्रिंसिपल पे चल रहा है, कि जहाँ पर लोकल काउंसिल्स एग्जिस्ट करती हैं, जब लोकल गवर्नमेंट्स आती हैं, उनके इलेक्शंस होते हैं और वो उनको फंड्स भी दिए जाते हैं, उनको बजट्स भी दिए जाते हैं, बट अल्टीमेटली वो अकाउंटेबल एक टेक्निकली उनको हो जाती है, बल्कि हमारे यहाँ तो टेक्निकली कंट्रोल भी बहुत ज्यादा होता है. तो वी आर समवेयर बिटवीन डीकॉन्सेंट्रेशन एंड डेलीगेशन. समटाइम्स इट कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज अ डीकॉन्सेंट्रेशन मॉडल एंड समटाइम्स डेलीगेशन, क्योंकि हम आगे देखेंगे और जब हम मसले आइडेंटिफाई करेंगे लोकल गवर्नमेंट्स के क्या इशूज हैं पाकिस्तान में कि वो फेल होती हैं, उसमें मैं आपको बड़ी डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है लोकल गवर्नमेंट्स को फ्रॉम प्रोविंशियल लेवल्स. थर्ड इज द मॉडल ऑफ डाइवेस्टमेंट. डाइवेस्टमेंट के अंदर जो इससे ज्यादा ऑटोनॉमी देता है, इट इंटेल्स डिस्पोजिंग ऑफ सम फंक्शंस ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन फेडरेशन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिटरी स्टेट्स सच एज आउटसोर्सिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. यानी कुछ फंक्शंस जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर या सेंट्रल गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर कुछ फंक्शंस दे देती है लोकल काउंसिल्स को, जैसे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का फंक्शन कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही डील करेगी, हर म्यूनिसिपैलिटी खुद डील करेगी. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. ऑलराइट, इससे ज्यादा ऑटोनॉमी वाला मॉडल है डिफ्यूजन. डिफ्यूजन के अंदर पावर एट द सेंटर और प्रोविंस इज डिफ्यूज्ड मोर ब्रॉडली बिटवीन डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज एट ऑल लेवल्स. तो इसमें बेसिकली जिस तरह फेडरेशन के मॉडल में कॉन्स्टिट्यूशनली डिलिनेट कर दिया जाता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट्स की पावर है और ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं,
क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर्स आ जाती है फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान फेडरेशंस के अंदर। उसी तरह डिफ्यूजन के मॉडल में प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर दी जाती है। तो लोकल गवर्नमेंट्स को एक लीगली तौर पर स्टैट्यूटरी तौर पर ऑटोनॉमी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और सबसे ज्यादा जो मॉडल है जिसमें सबसे ज्यादा पावर्स मिलती है लोकल गवर्नमेंट को, वो वाली डिसेंट्रलाइजेशन जो हाईएस्ट ग्रेड पे ऑपरेट करती है, वो है डेवोल्यूशन का मॉडल। इन डेवोल्यूशंस गवर्नमेंट्स डिवॉल्व फंक्शंस, दे ट्रांसफर अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकिंग, दे ट्रांसफर फाइनेंशियल autonomy and management powers to quasi autonomous units of local government। तो यानी finances financially भी वो independent होंगी, decision making भी उनकी independent होगी और management of those functions भी independent होंगी। तो वो बहुत ज्यादा autonomy पे operate करती हैं। Devolution usually transfers responsibilities for services to municipalities that elect their own mayors and councils, raise their own revenues। This is very important that they have the ability to raise their own revenues थ्रू के अपने लोकल टैक्सेस लगा सकते हैं। तो म्यूनिसिपैलिटीज अपनी जुरिस्डिक्शंस में प्रॉपर्टी टैक्सेस लगा सकती हैं, टोल टैक्सेस लगा सकते हैं, कंजेशन टैक्सेस लगा सकती हैं, बिल्डिंग के ऊपर रेगुलेशंस और टैक्सेस लगा सकती हैं, जोनिंग लॉज पे उनका कंट्रोल होगा। ठीक है, तो बेसिकली फाइनेंशियली ऑटोनमस होना भी बहुत जरूरी है। और ओन सोर्स रेवेन्यू अगर लोकल गवर्नमेंट्स का एग्जिस्ट करता है तो ही वो सबसे ज्यादा उनके पास ऑटोनॉमी होगी। एंड हैव इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। लाइकवाइज वो इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी खुद कर सकती हैं, तो इनका ऑन सोर्स रेवेन्यू भी ज्यादा होगा। इन अ डिवॉल्व्ड सिस्टम लोकल गवर्नमेंट्स हैव क्लियर एंड लीगली रिकॉग्नाइज्ड जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ओवर व्हिच दे एक्सरसाइज अथॉरिटी एंड विद इन व्हिच दे परफॉर्म पब्लिक फंक्शंस। इट इज दिस टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन दैट अंडरलाइज मोस्ट पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। तो जब हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, लोकल गवर्नमेंट्स की बात करते हैं, तो जनरली we are aiming and aspiring towards this model of system। genuine devolution जहां पर हो, न्यूयॉर्क सिटी की जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है, जो उसका मेयर का निजाम है, या जो लंदन का है, उसमें जनरली ये डेवोल्यूशन का मॉडल फॉलो होता है। हम अभी बहुत पीछे हैं। हम जब लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो हमारी जो एस्पिरेशन है वो इस लेवल तक पहुंचने की है, मगर हम अभी तक डीकॉन्सेंट्रेशन से तकरीबन आगे नहीं बढ़े। अब आ गया, जब हम ये सिग्निफिकेंस डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें वो पहले दो प्रिंसिपल्स आ गए जो हमने डिस्कस किए, और उसके बाद उसमें ये वाली चीजें आ गई कि क्या सिग्निफिकेंस है, इसके क्या फायदे होते हैं लोकल गवर्नमेंट के। सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि ये पॉलिटिकल प्रोसेस को मजबूत करता है, बिकॉज जो लोकल अथॉरिटीज होती हैं, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं, दे आर द फंडामेंटल पिलर ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस इन द सोसाइटी एट लोकल लेवल। तो ओवरऑल पॉलिटिकल प्रोसेस जो आपका वो मजबूत होता है। दूसरा ये कि इट इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज द बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी, it is that foundation upon which the whole edifice of democracy ultimately thrives, because local government is a system based on the involvement of the largest number of citizens in solving the problem faced by citizens, thus applying democracy at the lowest level। क्योंकि फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पर अगर आपके रिप्रेजेंटेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं तो दे आर जनरली लेस एक्सेसिबल टू यू। ठीक है, दे आर ऑल्सो लेस पार्टिसिपेशन फ्रॉम सिटीजंस एट प्रोविंशियल लेवल्स या एट फेडरल लेवल। लेकिन जो लोगों की खुद कंट्रीब्यूशन है थ्रू इलेक्शंस, थ्रू रीचिंग आउट टू देयर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, वो हमेशा लोकल लेवल पर ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये इसलिए एक बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी कंसीडर होता है। इट मेक्स द गवर्नमेंट मोर रिस्पॉन्सिव टू सिटीजंस। दूसरी बात एक बड़ी अहम है कि लोकल लोग जो हैं, लोकल सिटीजंस आर मोस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर नीड्स एंड प्रायोरिटीज। आपको अपने म्यूनिसिपैलिटी के, अपने नेबरहुड के, अपने कम्युनिटी के मसाइल का खुद सबसे ज्यादा बेहतर अंदाजा होता है, ना कि वो उन लोगों को जो फेडरल गवर्नमेंट में या प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बैठे हैं। दिस ऑब्लिगेट्स द लोकल काउंसिल्स टू कॉन्स्टेंटली फील देयर प्रायोरिटीज, प्रॉब्लम्स, नीड्स एंड डिजायर्स। ठीक है, और इसके अंदर वो बात आ जाएगी कि किस तरीके से सब्सिडियरिटी वाले कॉन्सेप्ट से अगेन आप रिलेट करें कि चूंकि जिस लेवल पे मसला एग्जिस्ट करता है वहां पर लोगों को खुद वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस करना पड़ता है और लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को करना पड़ता है, तो वो बेहतर समझ सकते हैं लोगों के मसाइल को। Greater accountability, it is easier for citizens to approach and confront their local representatives that are present within their vicinities rather than politicians who are distant from them due to their work at provincial and federal legislatures। तो आपको accessibility जो है वो मिलती है अपने representatives की local level पे। Then it is a breeding ground for political leaders. Local government elections allow young and dynamic individuals to launch their political careers at the lowest level
and then making their way to the top, learning as they move in the political process. This creates a conducive climate for producing more responsive, learned and deserving politicians to reach the decision making echelons. तो आपको एक लोअर लेवल पे, छोटे लेवल पे मसाइल हल करते करते आप पॉलिटिकल लैडर पे ऊपर चल सकते हैं. और हमें बहुत ज्यादा जो डेवलप ममालिक है उनमें ये प्रैक्टिस नजर आती है. इवन इन चाइना वी सी दैट द टॉप लीडर्स बेसिकली हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ग्रास रूट्स, और वो वहां से काम करते हैं, वहां डिलीवर करते हैं, देन दे राइज टू पार्टी रैंक्स, इंटरनल पार्टी इलेक्शंस के जरिए, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता टॉप पे आते हैं. फिर आप लोकल लेवल पे गलती करते हो, उससे सीखते हो, उसका नुकसान कम होता है. लेकिन आप डायरेक्टली अगर ऊपर से लॉन्च हो रहे हो प्रोविंशियल लेवल पर या फेडरल लेवल पर, तो उधर आपको गलती करने का नुकसान लोगों को ज़्यादा उठाना पड़ता है, क्योंकि आपकी जुरिस्डिक्शन ज़्यादा ब्रॉड हो जाती है. सो दैट्स द एडवांटेज ऑफ लोकल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट से पॉलिटिकल करियर लॉन्च करने का. इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये ऐड कर सकते हैं आप कि 21st सेंचुरी जो गवर्नेंस चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए लोकल गवर्नमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं. उसकी वजह क्या है कि ये जो मॉडल था कि प्रोविंशियल लेवल से कंट्रोल किया जाए और फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे सारी डिसीजन मेकिंग की जाए, ये दिस इज़ सो 20th सेंचुरी. 21वीं सदी के बहुत डिफरेंट मसाइल हैं और बड़ी तेज़ी से बढ़े हैं. जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत रैपिडली इंक्रीज कर रही है, खास तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज में, खास तौर पे इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान स्पेसिफिक बात की जाए तो पाकिस्तान हैज़ द हाईएस्ट अर्बनाइजेशन रेट इन साउथ एशिया. ठीक है. और इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है, यानी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सोशल सर्विसेज अच्छी नहीं है, म्यूनिसिपल सर्विसेज नहीं है, बहुत कंपीटिंग इंटरेस्ट ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं लोकल लेवल पे. तो इतने 21वीं सदी के मसाइल के हल के लिए हम 19वीं और 20वीं सदी का जो ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम है या 20वीं सदी का जो डेमोक्रेटिक निज़ाम है उसको यूज़ करके 21वीं सदी के मसाइल को हल नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम है दैट वाज डिज़ाइंड थ्रू कॉलोनियल टाइम्स to cater to more rural population, land revenue collection, land management. आपका इवन पुलिसिंग का जो स्ट्रक्चर है वो थाना बेस्ड जो कल्चर है कि पुलिस स्टेशन ओरिएंटेड पुलिसिंग करना, वो भी एक कॉलोनियल टाइम्स में जुरिस्डिक्शन डिवाइड करने के एतबार से था. सिटी लेवल पुलिसिंग और सिटी लेवल एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह दुनिया में की जाती है वो हमारे यहाँ नहीं पाई जाती. और वो ये इसीलिए देयर इज अ डेफिसिट बिटवीन दैट आवर कंट्री इज कन्फ्रंटेड विद चैलेंजेस दैट आर 21st century, but we are dealing them with tools and governance structure of 20th century. और इसीलिए 21वीं सदी का मॉडल ये है कि लोकल लेवल पे डिसेंट्रलाइजेशन करके लोगों को मौका दिया जाए कि वो खुद अकाउंटेबल इलेक्ट करें लोगों को, और जो लोग अपने मसाइल को सबसे बेहतर समझते हैं वही उसका हल भी करें. अगर हम पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के कॉन्टेक्स्ट में लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो आर्टिकल 32 जो है प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है. ये इट talks about the promotion of local government institutions. आर्टिकल 140A जो है, जो 18th अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया था, उसमें ये कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट जो होगी लोकल गवर्नमेंट की वो प्रोविंसेस करेंगे. ये आर्टिकल 32 है. प्रमोशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस. द स्टेट शैल encourage local government institutions composed of elected representatives of the areas concerned, and in such institutions स्पेशल रिप्रेजेंटेशन विल बी गिवन टू पेजेंट्स, वर्कर्स एंड वुमेन. तो ये प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर जो आर्टिकल 32 है उसके अंदर बात की गई कि हमें एस्पायर करना है टू हैव ग्रेटर लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, एंड दोज लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस शुड हैव स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ women, workers and peasants. Their article 140 states 140A that each province shall by law establish a local government system and devolve political, administrative and financial responsibility and authority to the elected representatives of the local governments, and elections to the local government shall be held by the Election Commission of Pakistan. तो constitutionally provinces की ये जिम्मेदारी है कि हर province अपना अपना local government का जो है वो लॉ बनाएगा और उस हिसाब से अपनी पावर्स वहां पर डिवॉल्व करेगा. ये 18th अमेंडमेंट में एक कमिटमेंट की गई थी और वो कॉन्स्टिट्यूशनली कोडिफाई हो गई है हमारे लॉ के अंदर. इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो पार्लियामेंट के एक्ट्स होते हैं उनकी अहमियत होती है. तो सेक्शन 4 ऑफ इलेक्शन Pakistan Election Act 2017 demand the holding of elections within 120 days after the expiry of tenure of local government in a province. के 4 महीनों के अंदर लोकल गवर्नमेंट्स के टेन्योर जब मुकम्मल हो तो उसके 4 महीनों के अंदर उनके नए इलेक्शंस किए जाएं. अब ये एक बहुत बड़ा
गैप है पॉलिसी और प्रैक्टिस के अंदर, कि पॉलिसी ये कहती है कि 4 महीने के अंदर इलेक्शंस करवाए जाएं, मगर पंजाब में 1.5 साल हो गया इलेक्शंस नहीं हुए, केपीके में कितने साल, 1 साल से ऊपर हो गया आई थिंक इलेक्शंस नहीं हुए, तो ये गैप एग्जिस्ट करता है। पाकिस्तान में इस वक्त एज ऑफ येट on 19 September 2020 there is no local government in any province in Pakistan. The last one was in Sindh, but वो अक्टूबर के एंड पे local governments का tenure मुकम्मल हो गया, and currently there is no functional local governments in any province in the country. Article 10 of the Charter of Democracy, signed by former Prime Ministers Benazir Bhutto and Nawaz Sharif in London 2006, calls for a strong local government system under Article 140A. अभी तक हमने ये चीजें डिस्कस की हैं, और समरी की अगर बात करें तो जो सिग्निफिकेंस वाला अगर ये सवाल आता है आपको इसी तरह रिपीट होता है, तो आप ये सिग्निफिकेंस में आएगा और ये सिग्निफिकेंस में आएगा। आप अगर ये सवाल आए तो इसमें इस चीज को बेशक शुरू में ले जाएं और ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें, और फिर आप सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन करें, और फिर जब हम ये रीजंस ऑफ रिपीटेड फेलियर करेंगे तब आप वो वाली चीज़ें उसमें ऐड करते हैं। उसमें आप ये भी बता सकते हैं कि पाकिस्तान कैसे भी सिर्फ डीकॉन्सेंट्रेशन या डेलीगेशन तक महदूद रहा है। सो दैट्स ऑल, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर।